and welcome back to Above the Average, a podcast hosted by me and I am Chaitanya Nawathe. So, पहला podcast होने के बाद 2 हफ्ते हो गए. This was not supposed to happen. I'm sorry for such a long break. There are a few reasons I had to take this break. So you guys might have realized that this is the 3rd episode and there is no 2nd episode on my Instagram. So there are 2 reasons behind that. One, the topic that I took in that episode, which is depression and Sushant Singh Rajput. देखा, ये टॉपिक का नाम लेते ही थोड़ा स्ट्रेसफुल और नेगेटिव काइंड ऑफ फीलिंग आ जाता है. And that's exactly what I was going through when I was recording that episode. And I decided to not promote it because if I was so affected by it, I know so many other people were definitely affected by it as well. न्यूज़ ये अपने लिए कर ही रहा है. कहीं पे भी जाओ, सोशल मीडिया पे जाओ, न्यूज़ पे देखो, हमें ये सब चीज़ों पे आर्टिकल्स, वीडियोस, टेक्स्ट, फिर लोग स्टोरीज पे डाल रहे हैं. बहुत सारा इस पे डिस्कशन चल रहा है. So talking about it again after we have somehow recovered from the news, I thought I'll not promote it, but it is still on Spotify and Google Podcasts, and there is always a website in my Instagram bio. And the other reason is that we all are bombarded with negative news. So rather than giving another outlook, like that is my opinion on what had happened, rather than giving it out right now, I wanted to talk about the positivity that is there in 2020. With that being said, I also want to sit down and talk with you guys about what Above the Average is going to be. This is going to be a platform I put my opinion on, and at the same time bring more people to have a good discussion on various topics. It might be on social topics, but it is also going to be on topics which are career oriented and which can help us in having a better career or a career choice and things like that. Now, the motto or the tagline of this podcast is a podcast from a student for a student. So I am still learning and I want you guys to come along with me on this journey of learning while sharing. That is like the main reason I wanted to make this podcast. And I hope I am able to bring more value to you guys from above the average and help you become above the average. So anyways, getting back to today's episode. एक चीज I hope everyone has realized it has been 4 months now. Lockdown is a blessing in disguise. मतलब obviously with all due respect to the people who are affected, considering कि हाँ उनके साथ बहुत स्ट्रेसफुल चीज़ें हो रही हैं, बहुत बुरी एंड आई से काफ़ी मुश्किल घड़ी है उन पे, उनका बुरा लग रहा है हाँ, बट एट द सेम टाइम पॉजिटिव चीज़ें भी हो रही हैं. मतलब सब कुछ ही नेगेटिव नहीं हो रहा. दैट्स व्हाट आई मीन. अपने ही लाइफ में ले लो, हम सब घर पे हैं तो एक फैमिली के साथ टाइम मिल रहा है जो यूजुअली नॉर्मल डेली रूटीन में नहीं मिलता, क्योंकि कोई ना कोई घर के बाहर होता है. कोई ऑफिस समझ लो, कॉलेज हो जाए, स्कूल हो जाए, कोई ना कोई बिजी होता है. बट अभी क्योंकि दिन भर साथ में ही है एंड आई थिंक इतना 4 महीने हो गए, तो स्लोली एंड स्टडीली आई एम प्रिटी श्योर अ लॉट ऑफ फैमिलीज गॉट मोर क्लोजर देन दे वर बिफोर. सो दैट इज़ अ पॉजिटिव साइड कि फैमिली के साथ टाइम भी मिल गया एंड थोड़ा अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ गया. एटलीस्ट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो यही रहा है कि मेरे फैमिली के साथ और बेटर हो गया. जो ऑलरेडी अच्छा था हाँ, बट अभी जो हुआ है वो बिना लॉकडाउन के मुश्किल होता या फिर टाइम लग जाता. सो आई एम प्रिटी श्योर एवरीवन हैज़ वेंट थ्रू दिस. अ फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स हैव टॉक टू एंड आई हैव रियलाइज्ड कि हाँ उनके लाइफ में भी ऐसा हो रहा है. उनके लाइफ में भी उनके फैमिली से वो थोड़े क्लोज आ गए हैं एंड एट द सेम टाइम हम सब अपने फ्रेंड्स को मिस कर रहे हैं. बट उसमें 2 चीज़ें रियलाइज़ हो रही है. इफ़ यू हैड अ नेगेटिव फ्रेंड ग्रुप, लाइक उनके साथ रह के कुछ लाइफ में या करियर के लिए नहीं सोचते थे,
सिर्फ फालतू का टाइम पास, एक दूसरे को गाली देना, सिर्फ वही होता था. तो यू डोंट मिस दोज पीपल नाउ. मतलब आप घर पे हो तो यू आर नॉट मिसिंग दोज, बट देर आर स्टिल फ्रेंड्स वी ऑल आर मिसिंग. दोज आर द रियल वंस. मतलब एक इन अ वे बहुत लोगों के लिए एक फ्रेंडशिप किसके साथ सच्ची है वो रियलाइज हुआ है बहुत लोगों को. सो दैट इज अनदर पॉजिटिव थिंग. अनदर थिंग कि सब स्टूडेंट्स को इतना अच्छा लग रहा है. आई मीन टू बी ऑनेस्ट दिस शोज दैट कॉलेजेस एंड स्कूल्स डोंट मेक स्टूडेंट्स लाइक इट. मतलब कोई भी मैं अपने क्लासमेट को पूछूं यार कॉलेज मिस करता है क्या, एंड इज लाइक नो ब्रो, बिल्कुल भी नहीं. मतलब इट शोज कि हाँ कॉलेज का कुछ भी अफेक्शन टुवर्ड्स कॉलेज नहीं था, बट एट द सेम टाइम वी आर गेटिंग दिस ब्रेक फ्रॉम कॉलेज, ब्रेक फ्रॉम दिस काइंड ऑफ डोंकी वर्क दैट वी हैव टू डू व्हेन वी आर इन कॉलेज. करियर पे फोकस करने को बहुत लोगों को टाइम मिल रहा है. घर पे बैठे बैठे सब ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस कर रहे हैं, कुछ लोगों के ऑनलाइन क्लासेस भी चल रहे हैं. बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर जस्ट होम. मतलब हम नॉर्मल ज़िंदगी में बाहर घूमते रहते हैं, दोस्तों को मिलते हैं, फिर ट्रैवलिंग में टाइम चला जाता है. अभी सब घर पे हैं तो एक टाइम मिल रहा है खुद के साथ सोचने कि मुझे क्या पसंद है, मुझे करियर में क्या करना है. दैट इज़ अनदर गुड थिंग दैट कम्स आउट ऑफ लॉकडाउन. एंड एक खुद से कनेक्ट बहुत लोगों को मिल रहा है. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि बहुत लोगों को समझता ही नहीं है कि लाइफ में उन्हें पसंद क्या है. मतलब ट्रेंड होता है, ये जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें एक ट्रेंड होता है कि फॉर एग्जांपल जो मेरा ट्रेंड चल रहा है कि साइंस लो, इंजीनियरिंग लो, एमबीए करो और निकल आओ. बहुत लोगों को मालूम नहीं होता कि वो उनको करना है कि नहीं. बहुत लोगों को मालूम नहीं होता एमबीए उनका फील्ड है भी कि नहीं, इंजीनियरिंग उनका फील्ड है भी कि नहीं. एंड ऑब्वियसली हर एक फील्ड में ऐसे कुछ मिसफिट्स है, जो मिसफिट्स इन द सेंस कि उन्हें कुछ और पसंद है एक्चुअली, बट बिकॉज उनको मे बी पेरेंट्स ने बोला या उस टाइम पे ज़्यादा सोचा नहीं, वो गलत फील्ड में आ गए. मैं सबको बोलना चाहूँगा जो भी गलत फील्ड में आ गया ऐसा लग रहा है, यू आर नॉट लेट. एवरीवन हैज़ अ लॉट ऑफ टाइम एंड अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन टर्म्स ऑफ करियर. हमने देखा ही है कि एग्जाम्पल लेते हैं इंजीनियरिंग का ही. लोग इंजीनियर बन के भी कुछ और बन जाते हैं. इंजीनियर बन के एक्टर, इंजीनियर बन के मैनेजर, बैंक में काम करना. सो बहुत सारा डिफरेंट करियर ऑप्शंस स्टिल ओपन रहते हैं. तो आई एम प्रिटी श्योर एवरी अदर फील्ड हैज़ दीज ऑप्शंस एंड पीपल हु हैव ऑलरेडी डन इट. सो अगर आपको अभी ये लग रहा है घर पे बैठे बैठे कि यार मुझे ये करना चाहिए था, कोई बात नहीं, इसके आगे करेंगे. एंड दैट इज़ अनदर पॉजिटिव न्यूज़. वर्ल्ड में भी काफ़ी अच्छी चीज़ हो रही है. तो पर्सनल चीज़ें हो गई. न्यूजीलैंड इज़ द फर्स्ट कंट्री हु इज़ फ्री ऑफ कोविड पेशेंट्स नाउ. ग्रेट डेवलपमेंट. देन इंडिया में बहुत सारे मेजर्स लिए जा रहे हैं कि कोविड को कैसे रुकाया जाए. मुंबई में जो डॉक है हमारा, उधर यूवी सैनिटाइजर्स लगाए हैं. कर्नाटका एंड केरला आर टेकिंग ह्यूज मेजर्स टू fight against COVID-19. Because of COVID-19, we have realized how much cleanliness is important for us. And उसके वजह से cleanliness बहुत बढ़ गई है in this COVID-19 situation. Another great thing that has happened in the world because of lockdown, pollution कम हो गया. हमने मीम बना दिया कि घर पे बैठे बैठे मुझे मार्स दिख रहा है. बट आई होप सबको ये भी समझ रहा है कि हाँ, it is actually something that has happened due to lockdown. The air clarity has increased. The air has become a little more pure. I'm just stating facts that I saw on the news when I was trying to find positive things. हाँ, नेगेटिव चीज़ें हो रही है बट पॉजिटिव चीज़ें भी उतनी ही हो रही है. एंड ये सब हिडन है. ये सब के पीछे हम सब सिर्फ नेगेटिव चीज़ें ही देख रहे हैं. ये नेगेटिव हो या स्ट्रेसफुल, वही चीज़ें सिर्फ देख रहे हैं और वही प्रमोट कर रहे हैं, खुद के स्टोरीज पे ही क्यों ना हो. ट्विटर पे देखा मैंने, हर एक बंदा जो ट्वीट कर रहा है ऐसा कुछ नेगेटिव है. एंड दैट इज़ गुड कि नेगेटिव चीज़ों के बारे में डिस्कशन होना चाहिए. हाँ, बट ये जो हिडन पॉजिटिविटी है वो हिडन नहीं रखनी चाहिए. ये हिडन पॉजिटिविटी पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए रादर दैन ऑल द नेगेटिविटी. मैं पर्सनली यही बिलीव करता हूँ कि स्ट्राइव ओनली फॉर पॉजिटिविटी while being aware of the negativity. मतलब
अगर हमने नहीं सोचा कि सुशांत सिंह राजपूत ने ऐसा क्यों किया, तो हम कुछ सीख ही नहीं पाएंगे उससे, और इग्नोर कर दिया तो हम कुछ भी नहीं समझ पाएंगे. एक्चुअली दिस इज अनदर रीजन बिकॉज आई टॉक्ड अबाउट डिप्रेशन इन दैट एपिसोड एंड आई ओनली टॉक्ड विथ हाफ इंफॉर्मेशन. मतलब डिप्रेशन के बारे में मुझे सब नहीं मालूम था, एंड एग्जैक्टली डिप्रेशन क्या है एंड एग्जैक्टली क्या होता है उनके दिमाग में जो डिप्रेशन के थ्रू जाते हैं. आई मेड अ स्टेटमेंट ऑन डिप्रेशन सेइंग कि सब स्टूडेंट्स डिप्रेस होते हैं. दैट इज़ नॉट ट्रू. So after making that, I tried to research a little bit and I realized depression is an illness. I didn't know that before this. It is an actual thing that happens जब तुम्हारे ब्रेन में सेरोटोनिन करके एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है. सेरोटोनिन वो जब कम हो जाता है, that's when you are prone to get depressed or you fall into depression. So there are many proven ways to treat this, but I'm not the right person to talk on it, or I don't have enough information to talk on it. Now, getting back to the topic कि कैसी पॉजिटिव चीज़ें 2020 में छुपी हुई हैं. 2020 is a clap back to humans. मतलब हमने इस planet को इतना बुरी तरीके से ट्रीट किया है all our lives. 2020 is the year the planet was like, that's enough, and put us into detention. Detention being the lockdown. सबको घर पे बिठा दिया और पनिशमेंट में डाल दिया कि घर बैठो और सोचो तुम इतना गलत थे और कितनी गलत चीज़ें कर रहे थे. और गलत चीज़ें सिर्फ प्लैनेट को नहीं, टू इवन आवर ओन ह्यूमन रेस, आवर ह्यूमन काइंड. रेसिज्म, सेक्सिज्म, देन कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजन पे लड़ाई, ऐसे बहुत सारी गलत चीज़ें हैं जो हम एज ह्यूमन रेस करते आए हैं अभी तक. मतलब इन डिटेंशन, आई होप एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग, इंडिया में डिटेंशन होता नहीं है, बट पनिशमेंट के लिए रुका के रखता है आफ्टर स्कूल एंड एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं उन बच्चों के जो बहुत मिसचीवियस होते हैं क्लास में. सो 2020 इज़ द ईयर ऑफ डिटेंशन फॉर ह्यूमन काइंड. सबको घर पे बिठा के रखा है एंड बोला है कि अब सोचो तुम कितने गलत थे, ऐसे डांट रहा है, ये सब नेगेटिव चीज़ें दिखा के डांट रहा है. एंड आई होप एंड प्रे दैट ऑल ऑफ अस understand the importance of this and get through 2020 together and come out of this as better, more caring, more responsible human beings. And I'm not trying to sound like a sadhu sant, but this is something I came up with when I was thinking about how the positivity is being ignored by us. ऐसे ही बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं, हमें रियलाइज़ भी नहीं हो रही, जो हिडन है, इग्नोर्ड है, एंड वी नीड टू टॉक अबाउट इट, वी नीड टू थिंक अबाउट इट. सो फॉर पीपल हु हैव समथिंग दैट दे रियलाइज कि ये तो चीज़ अच्छी हो रही है लॉकडाउन की वजह से, प्लीज़ लीव अ कॉमेंट डाउन बिलो. Yeah, that is all about the positive news. It is not all the positive news, but it is all that I am going to cover in today's episode, because there is so much positivity out there that it is not possible for me to actually put it in just one episode. Before I end today's episode, I wanted to add in a segment in the podcast where I will be giving you guys just random fun facts. Today's random fact is about French fries. We all love French fries. मैकडोनल्ड्स में जाके सबसे पहले फ्रेंच फ्राइज देख के हमारे मुंह में पानी आता है. सो फ्रेंच फ्राइज के नाम में ही फ्रेंच है, तो ऑब्वियसली वो फ्रांस से ओरिजिनेट होनी चाहिए, बट दैट इज़ अ लाई. इट इज़ एक्चुअली फ्रॉम बेल्जियम. द स्टोरी बिहाइंड इट इज़ दैट इन द लेट 1800s in Belgium they used to have a dish in which they used to fry small fishes. And in the winter seasons उनका river जम जाता था, which is why they could not get the small fishes. So the poor class people had nothing to eat because उनका main staple food at that time I guess वही था. So they turned towards batata.
they found batata to be very easy to get and at the same time very delicious when they cooked it in the same recipe of the fries, the fish fries. And how did it get the name then? Americans stationed in Belgium around that time, and they were introduced to these beautiful yellow fries, potato fries, and they named it French fries because the main language spoken in Belgium was French. So that is the origin story. That is how they got the name French fries. We give the credit for making this beautiful, delicious piece of art to France when they actually originate from Belgium. So, yeah, that's it for today's fun fact. Thank you so much for listening. I hope you liked today's episode. If you did, please leave a like. And these episodes are always on Spotify and Google Podcasts, and obviously on the website in my Instagram bio. So please check them out because after a few episodes, I am going to be stopping posting on IGTV and they'll be solely on Spotify and Google Podcasts. Thank you so much for the feedback that I got on my first episode. It was really unbelievable. It really motivated me a lot because of so many people commenting and sharing and liking it. Thank you so much again, and I hope you liked today's episode. See you in the next one. Bye bye.